Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is more on Photoshop CC. Objectives of learning, layers in Photoshop, painting tools, eraser tool, retouching tools, blur, sharpen and smudge tools, working with text. In the previous class, we have discussed about the basic concepts and tools of Adobe Photoshop. In this chapter, we will learn about painting and retouching tools, blur, sharpen and smudge tools, etc. We will also learn about layers and filters that help us work with images in a better way. पीछे की क्लासेस में आपने जो टूल्स होते हैं आपके अडोब फोटोशॉप के उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में देखा। इस चैप्टर में आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, एडवांस्ड फीचर्स देखने वाले हैं एडिटिंग के, प्लस किस तरीके से आप फिल्टर्स को और लेयरिंग्स को यूज़ करते हैं इमेजेस को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। Layers in Photoshop. Layers are like stacked transparent sheets of glass on which you can paint images. You can see through the transparent areas of a layer to the layers below. You can work on each layer independently, experimenting to create the effect you want. Layers are useful because they allow you to add components to an image and work on them one at a time, without permanently changing your original image. For each layer, you can adjust color and brightness, apply special effects, reposition layer content, specify opacity and blending values and so on. तो बेसिकली आपके जो फोटोशॉप पे अलग अलग लेयर्स होती है वो आप इमेजेस को पेंट करने के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें, कितना ट्रांसपेरेंट आपका इमेज होगा, बैकग्राउंड कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना ओपेक होगा, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए आपको लेयरिंग बेसिकली हेल्प करती है। तो आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी टाइप की आपको एडिटिंग करनी होती है वो आप यहाँ पर लेयरिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। द लेयर्स पैलेट, क्लिक हियर टू एक्सेस अ कमांड मेन्यू फॉर वर्किंग विद द लेयर्स। द आई आइकन इन फ्रंट ऑफ अ लेयर शोज दैट इट इज विजिबल। द लेयर्स नेम, द थंबनेल व्यू ऑफ द इमेज इन द लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर आइकन, ऐड अ लेयर स्टाइल आइकन, डिलीट लेयर आइकन। ये आपका जब लेयर पैलेट आप खोलते हैं तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। The layers palette lists all the layers, layer sets and layer effects in an image. We can accomplish many tasks such as creating, hiding, displaying, copying and deleting layers using the buttons in the layers palette. To display the layers palette in Photoshop, open the window menu and select the layers option. Let us get familiar with the different parts of the layers palette which will help us to work with the different layers in an image file. अब आपका जो लेयर पैलेट होता है उसमें आपकी बेसिकली 3 लिस्ट होती है। लेयर्स होता है, लेयर सेट्स होते हैं और लेयर इफेक्ट्स होते हैं एक इमेज के अंदर। ये सारे टास्क आप कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी क्रिएटिंग होता है, हाइडिंग होता है, डिस्प्लेइंग, कॉपिंग, लेयर्स को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आपके अलग अलग टाइप के जो लेयरिंग पैलेट्स में बटन्स होते हैं, जैसे आप फोटोशॉप का उसमें आप विंडो मेन्यू में ओपन अप करते हैं, आपके लेयर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स नाउ गेट फेमिलियर विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स। Adding a new layer. A new layer is created when you paste any object in your image. Newly added layers appear above the selected layer in the layers panel. To add a new layer, follow the steps given below. Step 1, click on the new layer button in the layer pattern or select the layer, new layer option. Step 2, the new layer dialog box appears. Step 3, define name in the name text box and click on OK. अब आपका क्या है, अगर आपको लेयर के बाद एक नया लेयर को ऐड करना है तो उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप न्यू लेयर बटन पे क्लिक करेंगे आपके लेयर पैटर्न में जाके, या फिर आप सिलेक्ट करेंगे लेयर, लेयर के बाद आप जाएंगे न्यू पे, न्यू के बाद आप जाएंगे, ये आपका सारा का सारा लेयर ऑप्शन में होगा। फिर आपके सामने एक न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको आपका जो नेम टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको नेम को डिफाइन करना है और एंड में आपको ओके पे प्रेस कर देना है। रीनेमिंग a layer. To rename a layer, double click on the layer name in the layers palette and type a new name. अब rename बहुत सिंपल तरीका है, जो लेयर नेम है उस पर डबल क्लिक करिए, अपने नए नाम को डालिए और ओके या फिर एंटर पे दबा दीजिए, आपका लेयर का नेम चेंज हो जाएगा। फिर आता है लॉकिंग ऑफ लेयर्स। वी कैन लॉक लेयर्स टू प्रोटेक्ट देयर कॉन्टेंट्स। द 4 डिफरेंट लॉक आइकन्स गिवन एट द टॉप पोर्शन ऑफ द लेयर्स पैलेट अलाउ अस टू लॉक लेयर्स इन 4 different ways. Follow the steps given ahead to lock a layer. Step 1, select the layer that you want to lock from the layers palette. Step 2, click the lock transparent pixels icon to lock the transparent pixels in the layer. To unlock the layer, click at it again. Step 3, click the lock image pixels icon to lock the pixels that form the image. To unlock the layer, click at it again.
Step 4, click the lock position icon to lock position of the layer in the image. To unlock the layer, click at it again. Step 5, click the lock all icon to lock all the contents of the layer. To unlock the layer, click at it again. अब अगर आपको लेयर्स को लॉक करना है तो उसके आपके अलग अलग तरीके होते हैं. सबसे पहला, आपको लेयर को सिलेक्ट करना है जो आप लॉक करना चाहते हैं आपके लेयर्स पैलेट में जाके. उसके बाद आपको लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपके जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है लेयर में वो लॉक हो जाएं. टू अनलॉक करने के लिए दोबारा से उस पर क्लिक कर दीजिए, वो अनलॉक हो जाएगा. अब आपको क्लिक करना है लॉक इमेज पिक्सल्स आइकन पे टू लॉक द पिक्सल्स जो भी आपने इमेज को फॉर्म करा है. अनलॉक करने के लिए उसको दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो अनलॉक हो जाएगा. अब आपको क्लिक करना है लॉक पोजीशन आइकन पे टू लॉक द पोजीशन ऑफ द लेयर इन द इमेज. अनलॉक करने के लिए सिंपली उसको दोबारा से क्लिक कर दीजिए. फिर आपको क्लिक करना है लॉक ऑल आइकन पे ताकि आपके जो जितने भी कॉन्टेंट्स है लेयर में वो लॉक हो जाए. अनलॉक करने के लिए उसको दोबारा से क्लिक कर दीजिए, वो अनलॉक हो जाएगा. अगला है डिलीटिंग अ लेयर. If you find that you no longer need a layer, you can delete it. To do this, follow the steps given below. Step 1, select the layer you want to delete. Step 2, right click on it and select the delete layer option from the shortcut menu. Step 3, you can create a new layer by using the shift plus control plus n key combination. अब आपको लेयर को डिलीट करना है, आपको ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करिए जो आप डिलीट करना चाहते हैं. राइट क्लिक करिए उस पर, डिलीट लेयर वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करिए आपके शॉर्टकट मेन्यू में से. अब आप यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर. अगर आप नई लेयर को आपको क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की है आपके पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन. इन तीनों कॉम्बिनेशन की कीज से आप एक नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. अब आता है आपका पेंटिंग टूल्स. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड अबाउट वेरियस पेंटिंग टूल्स. लेट्स लर्न अबाउट सम अदर पेंटिंग टूल्स. तो पीछे की क्लासेस में आपने बहुत सारे पेंटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा है. ऐसे ही कुछ और अलग पेंटिंग टूल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है कलर रिप्लेसमेंट टूल. Color replacement tool is used to replace the existing color of an image with the foreground color. Follow the given steps to use color replacement tool. Step 1, select the brush tool, then color replacement tool. Step 2, the pointer shape changes to a target symbol. Choose an appropriate foreground color from the color picker. Step 3, hold down the Alt key and left mouse button to select any appropriate color from the color picker tool. You will notice the color change in the foreground color box in the tool palette. Step 4, drag the mouse to paint strokes using the brush in the image. Observe the changes in the picture. अब आपका क्या आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल. कलर रिप्लेसमेंट टूल को आप यूज करते हैं आपके इमेज के एग्जिस्टिंग कलर को चेंज करके दूसरा कलर उसमें ऐड ऑन करने के लिए. सबसे पहले तो आपका जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है उसमें आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेंगे. आपका जो पॉइंटर का शेप है वो एक टारगेट सिंबल में चेंज हो जाता है. इसमें से आपको अप्रोप्रिएट फोरग्राउंड कलर जो है वो चूज कर लेना है कलर पिकर में से. फिर आपको ऑल्ट की को होल्ड करना है और आपका जो लेफ्ट माउस बटन है उसको क्लिक करना है और आपको जो भी अप्रोप्रिएट कलर है वो आप कलर पिकर टूल में से सिलेक्ट कर लेंगे. अब आप नोटिस करेंगे कि आपका जो फोरग्राउंड कलर बॉक्स है टूल पैलेट में उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. अब अपने माउस को ड्रैग करिए ताकि आप अपने पेंट स्ट्रोक्स को यूज करते हुए ब्रश को यूज करते हुए अपनी इमेज पे लेकर जाएं और उसके बाद अपने चेंजेस को ऑब्जर्व करिए, आपका कलर चेंज हो जाएगा. फिर आता है आई ड्रॉपर टूल. Eyedropper tool allows you to change the foreground or background colors by lifting them from the image. It helps when you want to use an existing color in the image for another element. To use the eyedropper tool, follow the steps given below. Step 1, open the image in Photoshop from which you want to take color. Step 2, select the eyedropper tool from the tools panel or press the I key from the keyboard. Step 3, click on the color that you want to use from your image. The selected color becomes your new foreground or background color. अब आपका यूज होता है आई ड्रॉपर टूल जब आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, फोरग्राउंड यानी कि आगे का कलर, बैकग्राउंड यानी कि पीछे का कलर जब आपको चेंज करना होता है. तो ये कैसे होता है? सबसे पहले तो आप फोटोशॉप में उस इमेज को चूज कर लेंगे जिसका कलर आपको चेंज करना है. इसके बाद आप आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे आपके टूल्स पैनल में से या फिर आप सिंपली प्रेस करेंगे आई की को अपने कीबोर्ड में से. इसके बाद आप क्लिक करेंगे आपके कलर पे जो आप चेंज करना चाहते हैं आपकी इमेज में से. आपका जो सिलेक्टेड कलर है दैट बिकम्स योर न्यू फोरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड कलर. 3D material eyedropper tool. 3D material eyedropper tool works like the eyedropper tool. The only difference is that the eyedropper tool lifts colors from 2D images and 3D material eyedropper tool lifts material, pattern, texture from 3D models objects. The image shows two
3D objects, a cube and a cone. The cube has a texture. You want to copy the same texture into the cone. Follow these steps to do so. Step 1, select the 3D material eyedropper tool from the tools panel. Step 2, check that the cube layer is selected. Then move the 3D material eyedropper tool pointer and click on the cube to lift the texture. Step 3, select the cone layer and click on the cone to fill the copied texture. The selected texture will be applied on the object. अब आपका आता है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, या आपके इसमें 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोन होता है। एक ऑब्जेक्ट से आपको वही सेम चीज़ उठा के दूसरी चीज़ में डालनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके क्या स्टेप्स होते हैं आपके? सबसे पहले तो आपको 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल आपके टूल्स पैनल में से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको चेक करना है क्यूब लेयर। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको मूव करना है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल पॉइंटर को और क्लिक करना है आपके क्यूब पे टू लिफ्ट इन द टेक्सचर को उठाने के लिए, उभारने के लिए। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कोन लेयर पे और क्लिक करेंगे आपके कोन पे टू फिल द कॉपीड टेक्सचर। द सिलेक्टेड टेक्सचर विल बी अप्लाइड टू द अदर ऑब्जेक्ट। अब अगला आपका आता है इरेजर टूल। The eraser tool can erase portions of an image. The eraser tool is called an anti-brush tool. True to its name, it works like an eraser and erases the area on which we click and drag the eraser tool. There are 3 options under this tool. Let us learn about them. अब आपका eraser जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, चीज़ों को मिटाने के लिए यूज़ होता है। आपको एक पोर्शन को हटाना है या पूरी की पूरी इमेज को हटा देना है, उसमें आपका यूज़ किया जाता है। बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं आपके इरेजर टूल के अंदर भी। पहला है इरेजर टूल। The eraser tool erases texts and images based on the layer. If the user is on the text layer, then any text that the tool is dragged over will be erased. The size and style of the eraser can be selected in the options bar. अब यहाँ पहला क्या है आपका इरेजर टूल। जब आपको आपकी इमेज की लेयरिंग पे कोई टेक्स्ट लिखा होता है या इमेज होती है आपकी लेयर में, उसको मिटाने के लिए यूज़ होता है। ये यूज़र को यूज़ करता है आपके टेक्स्ट लेयर पे। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट के ऊपर आप इस टूल को ड्रैग करेंगे तो वो उसको इरेज करता हुआ जाता है। फिर आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। दिस इरेजर्स पार्ट्स ऑफ एन इमेज एंड मेक्स इट ट्रांसपेरेंट। इफ द इमेज हैज मल्टीपल लेयर्स इट इरेजेस द पिक्सल्स ऑफ द बैकग्राउंड लेयर। अब आता है आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये क्या करता है? आपका जो एक कोई भी पार्ट आपको डिलीट करना है या इरेज करना है इमेज का, या फिर उसको ट्रांसपेरेंट करना है, उसके लिए यूज़ करा जाता है। और अगर एक इमेज में मल्टीपल लेयर्स है तो ये उसके पिक्सल्स को डिलीट कर देता है बैकग्राउंड लेयर में से। डू यू नो, टू डिलीट द अनवांटेड एरियाज फ्रॉम योर सिलेक्शन, होल्ड डाउन द ऑल्ट की टू टॉगल द सब्ट्रैक्शन मोड फॉर द टूल एंड देन क्लिक एंड ड्रैग योर माउस अराउंड द बैकग्राउंड एरिया यू विश टू रिमूव। अब अगर आपको आपके बैकग्राउंड का कोई पोर्शन को डिलीट करना है, अनवांटेड एरियाज आपको डिलीट करने हैं आपके सिलेक्शन में से, तो सिंपली आप अपने ऑल्ट की को हैंडल करिए, होल्ड करके रखिए और उसके बाद आप टॉगल द सब्ट्रैक्शन मोड पे जाइए आपके टूल में से और क्लिक करके उसको ड्रैग करिए। आपके माउस को जिस भी बैकग्राउंड एरिया में आप ड्रैग करेंगे वो धीरे धीरे रिमूव होता रहेगा, इरेज होता रहेगा। तीसरे टाइप का इरेजर टूल है आपका मैजिक इरेजर टूल। द मैजिक इरेजर टूल डिलीट्स एरियाज बेस्ड ऑन सिमिलर कलर्ड पिक्सल्स। इट इज वेरी सिमिलर टू द मैजिक वैंड टूल. This tool is ideal for deleting areas with the same color that contrasts with the rest of the image. The steps to use the magic eraser tool are as follows. Step 1, open the image and select the eraser tool. Step 2, select the eraser size in the options bar. Step 3, select the eraser mode. There are 3 modes available: brush, pencil and block. Step 4, set the value for opacity in the options bar. The higher the opacity value, the more number of pixels erased at a time. Step 5, click and drag over the area that you want to erase. The area will be erased. अब आपका आता है मैजिक इरेजर टूल। बिल्कुल मैजिक वैंड टूल की तरह यूज़ होता है। जो आपके सेम टाइप के कलर होते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, उनको डिलीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये सपोज एक एरिया में रेड है, वही रेड कहीं और है, तो सेम टाइप के कलर को ये एक ही बार में डिलीट कर देता है। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले उस इमेज को ओपन करिए और सिलेक्ट करिए इरेजर टूल। इरेजर साइज सिलेक्ट करिए आपके ऑप्शंस बार में जाके। उसके बाद आप इरेजर मोड को सिलेक्ट करिए। 3 मोड्स होते हैं, ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक। उसके बाद अपनी इरेजर की ओपेसिटी की वैल्यू को सिलेक्ट करिए आपके ऑप्शंस बार में। जितना ज़्यादा ओपेसिटी की वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा पिक्सल्स आपके इरेज होंगे एक बार में। फिर क्लिक करिए, उस एरिया पे ड्रैग करते हुए लेके जाइए, धीरे धीरे आपका वो एरिया डिलीट होता रहेगा। अब अगला आपका आता है रीटचिंग टूल्स। रीटचिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द अरेंजमेंट ऑफ pixels in an image to remove imperfections from the image and give it a better finish. Some of the retouching tools are as
follows. तो आपका रीटचिंग टूल्स बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कुछ इमेजेस होती हैं उसमें इम्परफेक्शंस होती हैं, उन इम्परफेक्शंस को हटाने के लिए आपका बेसिकली रीटचिंग टूल्स यूज करा जाता है. इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. This tool is used to quickly repair imperfections such as blemishes, scars, unwanted marks and other imperfections in photographs. Follow the steps given below to use this tool. Step 1. Open the image that you want to retouch. Step 2. Select the spot healing brush tool. Step 3. From the options bar, specify the properties such as brush size, blending mode, etc. Step 4. Click and drag over the spots to get it repaired. कैसे आप इसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले जैसे आपके कुछ ब्लेमिशेस आ जाते हैं फेस पे या फिर आपके फोटोज़ में स्कार्स होते हैं, उनको आपको उस इमेज से हटाना होता है, तो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करा जाता है. सबसे पहले आप उस इमेज को ओपन अप कर लीजिए जिसको आपको रीटच करना है. फिर आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे. फिर आपके ऑप्शंस बार में जाके आप स्पेसिफाई करेंगे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि ब्रश साइज, ब्लेंडिंग मोड एक्सेट्रा. क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे स्पॉट्स वाले एरिया में जो आप रिपेयर करना चाहते हैं. फिर आपका आता है क्लोन स्टैम्प टूल. Using the clone stamp tool, we can copy a portion of an image and reapply it, repeating to cover an unwanted portion of the image. We can also done a portion of an image and paint them onto any other part of the image. To use the clone stamp tool, follow the steps given below. Step 1. Open the image and click the clone stamp tool on the tools panel. Step 2. In the options bar, click on brush preset pricker to set the brush size, style and hardness of the tool. You can use any brush tip with the clone stamp tool, which gives you precise control over the size of the clone area. Step 3. Hold down the Alt key. The cursor shape changes to a target symbol. Click on the image to define a source point. Step 4. Click and drag the mouse to that place where the clone is to be created. अब आपका क्या आता है, क्लोन स्टैम्प टूल. जब आपको एक इमेज को या इमेज के किसी भी एक पार्ट को एज इट इज क्लोन करने का मतलब ही होता है एज इट इज कॉपी करके दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर देना. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इमेज को ओपन अप करेंगे, उसके बाद आप क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे आपके टूल्स पैनल में जाके. फिर ऑप्शंस बार में आपको क्लिक करना है ब्रश प्रीसेट पिकर पे टू सेट द ब्रश साइज, स्टाइल एंड हार्डनेस ऑफ द टूल. आप अपने जो ब्रश टिप है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके क्लोन स्टैम्प टूल से, जो आपको बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल देता है आपके अलग अलग साइज पे आपके क्लोन एरिया पे. फिर आपको ऑल्ट की को होल्ड करना है, कर्सर का जो शेप है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा टारगेट सिंबल पे. फिर आपको इमेज को क्लिक करना है और आपको सोर्स पॉइंट को डिफाइन करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग द माउस जिस प्लेस पे आपको क्लोन्ड इमेज चाहिए, वहां पर आपका जो क्लोन्ड इमेज है वो क्रिएट हो जाएगा. अब अगला हमारा आता है पैच टूल. पैच टूल हेल्प्स यू टू रिप्लेस large objects or items from your image or photo. If you have a sample or source area, it is quite easy to use this tool. You can select using any of the selection tools and then use the patch tool to just replace that selection. The steps to use the patch tool are as follows. Step 1. Open the image in Photoshop in which you want to patch some details or insert some extra objects and select the patch tool from the tools panel. Step 2. Draw an area around your object, say A, which you want to replace. You can use any selection tools to make the selection. The area from which you want to replace is B. Step 3. Just click and drag A area over B area. You will see a preview of the image as you drag it. Step 4. When you drop the area A over the area B, Photoshop does the magic of blending the pixels from the source B or the destination area A perfectly. Deselect by pressing Ctrl plus D. It is so simple, but you might not get an accurate result every time. You may have to practice a few times. Ensure that you are working on the duplicate background layer or using a separate empty layer, not your original background layer. अब आपका आता है पैच टूल. पैच टूल का यूज होता है जब आपको बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आपकी इमेज में से या फिर कुछ भी आइटम आपको रिप्लेस करना होता है, हटाना होता है. अगर आपके पास कोई सैंपल या फिर सोर्स एरिया है तो ये करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोटोशॉप पे वो इमेज को ओपन अप करना है जिससे आपको पैच को हटाना है. कुछ डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी, सम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद आपको पैच टूल पे सिलेक्ट करना है. आपके टूल्स पैनल में जाके आपको एक एरिया ड्रॉ कर लेना है उस ऑब्जेक्ट के आसपास से ए.
जो भी आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद आप सिलेक्शन टूल पे जाएंगे सिलेक्शन को करने के लिए, जो आपका एरिया है जिससे आपको रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल बी से आपको ए को रिप्लेस करना है। इसके बाद आप क्लिक करिए और ड्रैग करिए ए को, एरिया को ओवर द बी एरिया। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी इमेज है जैसे आप उसको ड्रैग करेंगे, जैसे ही उसके बाद आप ड्रॉप करेंगे एरिया ए को एरिया बी के ऊपर, जो फोटोशॉप है वो ब्लेंड करना शुरू कर देगा पिक्सल्स को, और धीरे धीरे आप अगर आपको इसी सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है, हटाना है, तो आप कंट्रोल+D पे जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन पहली बार जब आप करेंगे तो इतना परफेक्शन आपको नहीं दिखाई देगा, बट विद प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका आता है डॉज टूल। The dodge tool is again used to give effects to an image. There are 3 options in the sub menu if you right click on the dodge tool. Number 1, dodge tool. It is used to make the darker portions of the image lighter. 2, burn tool. It is used to give a burning effect, that is to darken the pixels of the image or a selected portion of the image. 3rd, sponge tool. It is used to give a spongy effect to the image. Follow the steps given below to use dodge tool. Step 1, open the image and click on the dodge tool. Step 2, set the brush size and other properties of the dodge tool from the options bar. Step 3, click and drag the mouse on the image to apply the effect of the selected tool. अब आपका dodge tool होता है जब आपको कुछ अलग टाइप के इफेक्ट्स आपको देने होते हैं आपके इमेजेस में, तब यूज करा जाता है। 3 टाइप के आपके डॉज टूल ऑप्शंस होते हैं। पहला है डॉज टूल, जो आपके इमेजेस के डार्कर पोर्शंस होते हैं उनको थोड़ा लाइट करने के लिए यूज होता है। फिर आपका आता है बर्न टूल, बर्निंग इफेक्ट देता है, यानी कि आपके पिक्सल्स जो होते हैं इमेज को उसको थोड़ा डार्कन कर देता है ये। फिर आता है आपका स्पॉन्ज टूल, ये आपके इमेजेस में स्पॉन्जी इफेक्ट देने के लिए यूज करा जाता है। अब इसके भी आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप इमेज को ओपन अप करेंगे और क्लिक करेंगे डॉज टूल पे। आपके ब्रश साइज और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को डॉज टूल में जो आपका ऑप्शंस बार में है उसको डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करके आपकी इमेज के ऊपर लेके जाएंगे जहां पर भी आपको ये इफेक्ट्स चाहिए। कीबोर्ड शॉर्टकट्स। द शॉर्टकट की टू यूज डॉज टूल इज O। अब इतने सारे स्टेप्स को आपको फॉलो नहीं करना है, सिंपली आप कीबोर्ड पे O को प्रेस करिए, आप डॉज टूल को लॉन्च कर पाएंगे। अब अगला आपका आता है बर्न टूल। The burn tool is used to darken areas of an image. Follow the steps given below to use the burn tool. Step 1, select the burn tool. Step 2, in the options bar, select the brush shape and size, set exposure as 50% and range as mid-tones. Step 3, now drag over the area of the image that you want to darken. The dragged over area will get darker. अब आता है burn tool, ये आपके जो images के कुछ portions जिनको आपको darken करना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप burn tool को select करेंगे। आफ्टर दैट आपके ऑप्शंस बार में आप जाएंगे, ब्रश शेप और साइज को सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोजर को 50% पे आप सेट कर देंगे और रेंज को मिड टोन्स में ले आएंगे। अब आप ड्रैग करेंगे उस एरिया के ऊपर जिसमें आपको डार्कन करना है। आपका जो ड्रैग्ड एरिया है वो आपका डार्कन हो जाएगा। अब अगला आपका आता है ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल्स। These tools help us to change the appearance or focus of the selected areas of the image. अब आपका जो ब्लर, शार्पन या फिर स्मज का ऑप्शन होता है, ये जो अपीयरेंस होता है या फोकस होता है आपका इमेज को, उसको चेंज करने के लिए यूज करा जाता है। तो सबसे पहला है ब्लर टूल। द ब्लर टूल इज ग्रेट वे टू क्रिएट इफेक्ट्स इन अ फोटोग्राफ। दिस टूल कैन ब्लर और सॉफ्टन एन इमेज और पार्ट ऑफ एन इमेज। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। Step 1, open any image. Select the blur tool from the tools panel. Step 2, select the desired blur tool size, mode and strength from the context menu. Step 3, select the layer that you wish to work on from the layers menu. Step 4, drag the tool over the image you want to blur by holding the left mouse button. The more you move the brush over a portion of the image, the more blurred it will become. अब आपका आता है blur। या आपके इमेज में आपको कोई एरिया सॉफ्टन करना होता है, उसके लिए यूज करा जाता है। सबसे पहले आप अपने इमेज को ओपन अप करेंगे, ब्लर टूल को सिलेक्ट करेंगे आपके टूल्स पैनल में जाके। आपका जो डिजायर्ड ब्लर टूल साइज है, मोड है और स्ट्रेंथ है, वो आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके उसको स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है वो लेयर, आपके लेयर्स मेन्यू में जाके जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपको अपने टूल को ड्रैग करना है इमेज के उस पोर्शन में जिसमें आप ब्लर करना चाहते हैं, आपके लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके। द मोर यू मूव द ब्रश, जितना ब्रश को मूव करेंगे उतना ही ज्यादा वो एरिया ब्लर होता जाएगा। अब अगला आपका आता है शार्पन टूल। दिस टूल इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्लर टूल। This tool allows you to improve the clarity of your image by sharpening the outlines of an image more prominently.
Follow the steps given below. Step 1, open any photograph in Photoshop. Step 2, click on the sharpen tool and select the desired sharpen tool size, mode and strength from the context menu. Step 3, select the layer that you wish to work on from the layers menu. Step 4, move the sharpen tool over the area that you wish to sharpen by holding down the left mouse button and dragging the tool over the image area. अब शार्पन टूल बिल्कुल ऑपोजिट है आपके ब्लर टूल का. ब्लर टूल सॉफ्टन कर देता है, शार्पन टूल आपकी इमेज को और भी ज्यादा प्रोमिनेंट कर देता है, उसकी लाइंस को, एजेस को शार्प कर देता है. सबसे पहले आपको फोटोशॉप में फोटोग्राफ को ओपन करना है, फिर आप शार्पन टूल को सिलेक्ट करेंगे और डिजायर्ड शार्पन टूल का साइज, मोड और स्ट्रेंथ को आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से स्पेसिफाई कर लेंगे. फिर आपको वो लेयर को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको काम करना है लेयर्स मेन्यू में जाके. फिर आपको जो शार्पन टूल है उसको आपको मूव करना है बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, और जितना आप उसको मूव करते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो शार्प और प्रोमिनेंट हो जाएगा. तीसरा है स्मज tool. The smudge tool helps you to spread colors across the image like a smudge effect. It makes the blending of colors very similar to that of how we mix colors with our paint brush to produce different color combinations. Use the steps given below. Step 1, open any photograph in Photoshop. Step 2, click on the smudge tool and select the desired smudge tool size, mode and strength from the context menu. Step 3, select the layer that you wish to work on from the layers menu. Step 4, move the smudge tool over the area that you wish to smudge by holding down the left mouse button and dragging the tool over the image area. फिर आपका आता है smudge area. जब आपको आपकी एक इमेज में से कलर्स को स्प्रेड करना होता है तब ये यूज करा जाता है, बिल्कुल स्मज की तरह ही. उसके बाद आपके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो फोटोशॉप पे आप फोटोग्राफ को ओपन अप कर लेंगे. ओपन करने के बाद आपको स्मज टूल पे जाना है और डिजायर्ड स्मज का टूल साइज, मोड और स्ट्रेंथ को सिलेक्ट कर लेंगे आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके. फिर आप लेयर्स मेन्यू में जाएंगे, उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आप काम करना चाहते हैं. आपके स्मज टूल को उस एरिया के ऊपर मूव करेंगे जिसको आप स्मज करना चाहते हैं बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, और उसी एरिया के ऊपर आप उसको मूव करते रहेंगे. धीरे धीरे आपकी वो एरिया स्मज हो जाएगी, कलर स्प्रेड हो जाएगा. अगला है आपका वर्किंग विद टेक्स्ट. We can add text to an image. The type tool allows you to add text to your image. You can use text on a variety of projects, such as adding it to your images to create a poster, holiday card or invitation. The text type using this tool is added to a separate layer known as the type layer. अब text के साथ आप कैसे काम करते हैं? आपको किसी भी टाइप का स्पेशल कार्ड बनाना है, पोस्टर बनाना है, बड़े बड़े बैनर्स बनाने हैं, उसके लिए यूज करा जाता है. इस टाइप का जो टेक्सटिंग आप करते हैं टूल को यूज करते हुए उसको टाइप लेयर भी कहा जाता है. Adding and positioning the text. We can add text to an image and move the inserted text to place it anywhere in the image by using the steps given below. Step 1, open the image. Right click on the type tool in the tools panel from the sub menu that appears. Select the kind of type tool you want to use. Step 2, select the font type, color, size and so on from the options bar. Step 3, click anywhere on the image, a cursor will appear. Step 4, type the required text at the cursor's position. Step 5, you can select and manipulate the typed text exactly the way you do in a word processor. Step 6, to move the text to a required place, click on the type layer in the layers panel. Step 7, click on the move tool in the tools panel. Step 8, click on the written text, drag it to the desired place and release the माउस बटन. अब आपका जो टेक्स्ट है उसको आपको या तो ऐड करना है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को अगर पोजीशनिंग करनी है तो सबसे पहले आप इमेज को ओपन अप करेंगे. आपके टाइप टूल में आप राइट क्लिक करेंगे, टूल्स पैनल में जाके जो सब मेन्यू आपके सामने आएगा उसमें आपको काइंड ऑफ टाइप टूल जो भी आपको यूज करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. फिर आप फॉन्ट टाइप, कलर साइज और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके ऑप्शन बार में है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे. इमेज पे कहीं पे भी आप सिलेक्शन करिए, एक कर्सर वहाँ पर अपीयर हो जाएगा. आपको जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको आप टाइप करना शुरू करिए जहाँ पे भी कर्सर्स की पोजीशन है. उसके बाद आपने जो भी लिखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वर्ड प्रोसेसर में करते हैं. मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? अगर आपको उसको कहीं और पे पोजीशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको आपके टेक्स्ट को किसी और लोकेशन पे मूव करना है तो आप क्लिक करेंगे टाइप लेयर पे आपके लेयर्स पैनल में जाके. फिर आप क्लिक करेंगे मूव टूल जो कि आपके टूल्स पैनल में होगा. क्लिक करेंगे रिटर्न टेक्स्ट पे, ड्रैग करेंगे उसको डिजायर्ड लोकेशन पे और वहाँ पहुँचाने के बाद आपको अपने माउस को रिलीज कर देना है, वो उसकी टेक्स्ट की पोजिशनिंग हो जाएगी.
Do you know the horizontal type tool types text from left to right and vertical type tool types from top to bottom? तो horizontal type tool क्या करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ टेक्स्ट को लिखता है, और वर्टिकल टाइप टूल टॉप से बॉटम की तरफ आपकी टेक्स्ट को पोजिशनिंग करता है. फिर आता है आपका वार्पिंग टेक्स्ट. वार्पिंग इज यूज्ड टू पोजिशन द लेटर्स और टेक्स्ट इन डिफरेंट शेप्स. To use the warp option, follow the steps given below. Step 1. Select the type tool from the tools palette and enter the text. Step 2. Select the text and click on the Create Warped Text option on the options bar. The Warped Text dialog box appears. Step 3. Click on the drop down arrow of the Style option and select the required style. Step 4. You can also change bend, horizontal, vertical distortion settings in the dialog box. Step 5. Click on OK to apply the chosen warp style to the text. With the help of Move tool, place the text wherever you wish. अब आपको क्या करना है, वार्पिंग. वार्पिंग कब होती है, जब आपको लेटर्स जो होते हैं या फिर आपका टेक्स्ट का जो शेप होता है वो आपको चेंज करना होता है. सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे टाइप टूल को, आपके टूल्स पैलेट में जाके वहाँ पे अपने टेक्स्ट को एंटर कर लेंगे. फिर आप सिलेक्ट करेंगे आपके टेक्स्ट को, क्लिक करेंगे क्रिएट वार्प टेक्स्ट ऑप्शन, जो कि आपके ऑप्शंस बार में होगा. आपके सामने एक वार्प टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है आपके स्टाइल ऑप्शन पे और सिलेक्ट करना है रिक्वायर्ड स्टाइल. उसके बाद आप अपने जो बेंड है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिस्टॉर्शन, उसको सेटिंग्स जो आपका डायलॉग बॉक्स आता है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं. एंड में ये सब करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और आपका जो अप्लाइड चूजन वार्प स्टाइल है वो आपकी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा. अब मूव टूल की मदद से आप अपने टेक्स्ट को जहां पर भी मूव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. Critical thinking. Vinay has designed a greeting card in Photoshop CC. He wants to change the color of flowers from the existing color, red, to pink. Suggest him the suitable tool which will perform this task. अब विनय को क्या करना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है Photoshop CC पे. उनको अपना कलर चेंज करना है फ्लावर्स का, जो कि रेड है, उस रेड से उनको पिंक पे करना है. आपको बताना है कि वो ये कैसे कर सकते हैं. Let's revise. Layers are like transparent sheets that can have images and are stacked on top of each other. You can work with layers in the layers palette. In the layers palette, you can select, add, delete, hide, show and copy layers. Several different tools to retouch and repair the flawed areas in an image to make it flawless. Retouching tools allow us to repair damaged image, apply repeated patterns or enhance the look of an image by using various effects. The clone stamp tool lets you duplicate a part of the image. The eraser tool clears the current layer content. The type tool helps you to type messages in an image. Text warping is used to position letters of the type text in different shapes. तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से फोटोशॉप को यूज़ करते हुए आप अलग अलग टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं. आपके इमेज में ब्लर कर सकते हैं, स्मज कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बना सकते हैं. उसके अलावा आपकी ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं. फिर आपका क्लोन स्टैप टूल आता है, सेम टाइप की इमेज को जब आपको कहीं और पे क्लोन करना होता है, कॉपी करना होता है. इरेजर टूल आता है जब आपको कुछ अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट करना होता है. देन कम्स योर टाइप टूल, आपको कुछ भी टेक्स्ट आपकी इमेज में टाइप करना है उसको पोजिशन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं. फिर लास्ट में आपका आता है टेक्स्ट वार्पिंग, आपके वर्ड्स या फिर टेक्स्ट जो आपके इमेजेस में होते हैं उसकी शेप को चेंज करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए.